Okay, so what we did in the last class, last lecture में हमने क्या पढ़ा था? CPU. Okay. Other than that, what we did, what we discussed? Memory register. Registers, yes, correct, good, very good. And Control unit, arithmetic unit. Arithmetic unit, yes, very good. Then, okay, what's the role of register? Store a temporary memory. Okay, to store in a temporary memory. And why do we need it when we have main memory already in our hands? Then why to use this registers that's our temporary memory? Why we should go with it? Fastest memory. Fastest memory. How come it is fastest? कैसे वो फास्टेस्ट है? कि वो कम मेमोरी स्टोर करता है. कम मेमोरी स्टोर करता है. ओके, अदर देन दैट बाइट में स्टोर करता है. बाइट में स्टोर करता है. वो कितने बाइट स्टोर करता है? 8 और 16. वो बिट्स में स्टोर करता है, राइट? पहले तो बिट्स में स्टोर करेगा, मतलब हाँ ऐसा हम बोल सकते हैं कि 8 बिट स्टोर कर रहा है तो 1 बाइट जितना वो स्टोर कर रहा है. या फिर अगर हम ऐसा बोल कि 16 बिट स्टोर कर रहा है, मतलब कि 2 बाइट स्टोर कर रहा है. ठीक है, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं. तो क्या इसलिए वो फास्टेस्ट है? दैट्स द ओनली रीजन? नो मैम. हाँ, तो क्या है रीजन? अरिथमेटिक और कंट्रोल यूनिट के पास में होता है, इसलिए वो फास्टेस्ट होता है. डेटा शेयरिंग और जो इनपुट आउटपुट वगैरह है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा वहां पे डेटा को शेयर करना हमारे लिए. क्यों वो इजी हो जाएगा? बिकॉज इट्स ऑल देयर ऑन टू आवर सीपीयू इटसेल्फ. हमारे सीपीयू के ऊपर ही वो हमारा रजिस्टर भी है, हमारा एएलयू भी है और साथ में हमारा कंट्रोलर भी है. ठीक है, तो डेटा को एक दूसरे के साथ में शेयर करना इट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस. फाइन, ओके. दूसरा और हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट एल्स वी डिड? Sequence of bits. Okay, sequence of bit, what's called as sequence of bits? Flip-flops. Flip-flops. Okay, that's a sequence of flip-flops. Correct, very good. But what is that? Sequence of bits या sequence of flip-flops, what's that called as? वो है क्या एक्चुअली? किसे हम sequence of bits बोलते हैं या फिर हम किसे sequence of flip-flops बोलते हैं? जीरो वन की सीरीज में जो डेटा था उसे. That's bits, definitely. Zeros and ones are nothing but the bits. Very good. But हम sequence of bits मतलब sequence of zeros and ones, पर हम किससे बोलते हैं sequence of bits या sequence of flip flops या फिर sequence of zeros and ones या फिर sequence of binary? Definitely signals तो रहेंगे. Signals is nothing but the sequence of bits only. पर हम यहाँ पे जो जिस कंसर्न में हमने सॉरी जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी को. सी इफ यू रिमेम्बर हमने बात किया था रजिस्टर्स के बारे में. रजिस्टर्स को हम बोलते थे, रजिस्टर्स आर नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ बिट्स या फिर हम सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स उसे बोलते थे, इफ यू रिमेम्बर. यस. ओके, तो दैट्स नथिंग बट द रजिस्टर. ओके, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट एल्स वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? टाइमिंग सिग्नल. कंट्रोल यूनिट. Timing signals. Okay, what is timing signal? Yes, what is timing signal? Two types of signals we discussed when it comes to our controller. Okay, and what is timing signal and what is control signal? What are these two signals?
control of register. Yes, control signals will perform the controlling to our registers. Our registers are input output registers we have, then interfaces we have, then what our system registers we have, then which other registers do we have? Yes, which other drivers or whatever. What are other drivers or controllers we have? This is scanner controller, hard disk controller, printer controller, CRT controller, keyboard control, keyboard interface will be there. तो all this peripherals को control करने का job कौन perform करेगा? हमारा this control signal. Very good, good in a way. अभी दूसरा हमने जो discuss किया, that's our timing signal. Fine. So what's the role of this timing signal or what this timing signal will perform for us? टाइम में रजिस्टर से परफॉर्म होना सॉरी, कितने टाइम में? कितने टाइम में हमें क्या परफॉर्म करना है रजिस्टर से वो डिसाइड होता है. Other than that, what's there? What's the case? Instruction. Why it's getting into इंस्ट्रक्शंस और कमांड को इंस्ट्रक्शन और वैल्यूज को पढ़ने के लिए Okay, I have shared my screen. Is it visible to all of you or it's getting into loop? loop. I don't know why it's getting into loop. Just a minute. Girls, now it is visible to all of you, guys, boys, girls. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's not getting into loop, right? No, ma'am. Okay, fine. Okay. So basically, we were there at the timing signal. So what's the timing signal? We discussed about control signal, right? Very good. You know it very well. Now, what is our this timing signal, or how will it perform for us? What's the job of the timing signal? Yes.
you remember, then we discussed as in, say for example, in a one program there are 10 different statements, 10 different instructions. Fine. Now within this particular program, which particular instruction should be executed first, which should be executed next, and according to the order, which particular instruction should be executed when. That particular thing is been decided or controlled by our timing signal. Fine. याद है हमें ये? Yes, ma'am. Okay, let me show you the diagram. Yes, is it visible to you? Paint. Yes. Okay, fine. So if you remember, this is our timing signal, right? Where in timing signal I1 to I10 instructions are there, within which particular instruction I1 should be executed first, I2 should be executed first, कब कौन सा instruction हमारा execute होना चाहिए, that will be decided by with the help of this timing signal, and this is a control signal. Now where these two particular signals will reside, ये दोनों signal किसका part है हमारे? Control unit. Very good. It's a part of our control unit. This is about our registers. This is all about our ALU. This is our input output system. This is our main memory. Main memories consist of two parts, data and instructions. Okay. इसके बारे में ये जो भी अभी हमने देखा है regarding the same, there is one video. Let me show you. एक बार हम देखते हैं कि how it will with you. तो हम देखेंगे आगे का. अगर आपको लगता है कि आप लोग कंप्लीटली क्लियर हो इस पर्टिकुलर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के साथ, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं वीडियो को. यू टेल मी, यू डिसाइड इन एंड टेल मी, comfortable with von Neumann architecture or you want me to play the video? Comfortable. Okay, fine. All of you are comfortable? Yes, girls, all of you are comfortable, boys? Ma'am, ये link share कर देना. Okay, Nimisha, other than you, I'm asking to everyone. Not only Nimisha is studying, you all are there, right? देख लेंगे मैम. Okay, fine. So you want me to share a link? आप लोग देख लोगे या फिर अभी देखना है? Okay, fine. Okay, so okay, fine. Okay. So we are not getting into it, but just remember this thing कि ये von Neumann architecture जो है, it's really very important as point of view of our this particular unit number 1. Fine, unit number 1 में ये important है. Okay, अभी हम आगे का देखते हैं, and that is about. Okay, ये हमारा हो गया है. This is also we are done with. Okay, now next is about our device controller. Now what do you mean by device controller? Controller क्या होता है? You all know all these things, you know very well. आप लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, right? So just do let me know, tell me कि device controller क्या है हमारा? What is the device controller? Okay, device controller दोनों को हम divide करते हैं. चलो, device and controller, let us deal this two keywords separately. Now what is device for us? Device क्या है हमारे लिए? Audible to all of you? System. Okay. हाँ, जिसके थ्रू हम इनपुट दे सके, जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिल सकता है. In a way, the one which is made up of our with the help of which our computer is made up of. ठीक है, हमारे डिवाइस के अंदर. डिवाइस मतलब हो गया हमारा ये लैपटॉप हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, व्हाट नॉट. ना वो सारे क्या है, इन अ वे डिवाइसेस हैं. ठीक है, अब डिवाइस को हम जानते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट आवर कंट्रोलर. नाउ कंट्रोलर का जॉब क्या होता है? अब यहाँ पे आईटी या फिर कंप्यूटर का टर्म ही जाने दो, सिर्फ कंट्रोलर के बारे में बताओ. कंट्रोलर क्या होता है? जिससे हम कंट्रोल कर सकें. हाँ, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कंट्रोल इट. कंट्रोल करने की जरूरत क्या होती है कि ताकि वो ठीक से बिहेव करे, उनका जो रोल है उसे वो ठीक से प्ले करे.
ठीक है, मतलब कि अगर कीबोर्ड इंटरफेस है, कीबोर्ड कंट्रोलर है, तो उसका रोल क्या है, इनपुट लेने का, तो वो ठीक से इनपुट ले यूजर के पास से। सीआरटी कंट्रोलर, व्हाट इज सीआरटी? यस, व्हाट सीआरटी? सीआरटी क्या होता है? ये आपने टाइप्स देखे ना, आपके डिस्प्ले डिवाइस के टाइप्स आप देख चुके हो, राइट? तो व्हाट सीआरटी कंट्रोलर, कंट्रोलर जाने तो सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब, फाइन, ये आपने शायद से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब कंट्रोलर होता है, तो देन कीबोर्ड इंटरफेस, कैथोड रे ट्यूब कंट्रोलर, प्रिंटर कंट्रोलर, स्कैनर कंट्रोलर, हार्ड डिस्क कंट्रोलर। तो हार्ड डिस्क कंट्रोलर यहाँ पे क्या करेगा कि हार्ड डिस्क आपका जो है उसका जॉब क्या है, उसका रोल क्या है, डेटा को उसके अंदर सेव करने का या डेटा को उसके अंदर कैरी करने का। तो क्या वो ठीक से एज अ मेमोरी वो बिहेव कर रहा है या नहीं, वर्क कर रहा है नहीं, तो वो सारी चीज कौन लुक आफ्टर करेगा? कंट्रोलर, ठीक है। तो एक होता है हमारा डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो एक चीज है, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसका ठीक से प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं, वो चीज लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कंट्रोलर आएगा। नाउ आपने सुना होगा डिवाइस ड्राइवर्स, हैव यू हर्ड दिस टर्म डिवाइस ड्राइवर्स? व्हाट्स द डिवाइस ड्राइवर? इसकी ऐसे डिवाइस चलता है उसको बोलते हैं। Okay, with the help of which device will work, sorry, device will run, ठीक है। In a way, what's that driver? That driver is nothing but a piece of code. उसके अंदर कुछ नहीं है, वो एक पीस ऑफ कोड है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हमारा जो डिवाइस है वो वर्क करता है। मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमारा हार्डवेयर वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप अपने लैपटॉप में कोई बिल्कुल ही नया, सपोज आपने कभी भी आईफोन अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल नहीं लगाया है, अगर आप आईफोन लगाने चाहोगे तो वहां पे वो आपका ड्राइवर ऑटोमेटिकली आईफोन के लिए इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, इफ यू हैव नोटिस दैट थिंग। या फिर आप नया कुछ भी सिस्टम के मतलब कि यूएसबी ड्राइवर की हेल्प से कुछ भी मतलब आप डालने जाओगे वहां पे, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी ड्राइवर हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंस्टॉल हो जाते हैं और हमें हेल्प करते हैं। नोटिस किया है कभी आपने इस दैट थिंग? यस सर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा कंप्यूटर है उसको जो दूसरे मतलब कि एडिशनल डिवाइसेस जो हम अटैच करते हैं उसको वर्क करवाने के लिए हमें जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जरूरत है उसे हम डिवाइस कंट्रोलर बोलते हैं, या फिर आप डिवाइस ड्राइवर उसे बोल सकते हो। तो दैट्स नथिंग बट द सॉफ्टवेयर, अ पीस ऑफ कोड, अ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फाइन। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर या फिर आपके डिवाइस ड्राइवर्स, फाइन। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स हैं कि कीबोर्ड आपको यूज करना है तो कीबोर्ड के लिए भी आपको ड्राइवर का जरूरत रहेगा। सीआरटी कंट्रोलर, मतलब सीआरटी कंट्रोलर क्या है? सीआरटी इज नथिंग बट द कैथोड रे ट्यूब। ये एक हमारा स्क्रीन डिस्प्ले का कंट्रोलर है। हमारा जो डेस्कटॉप जो है या फिर हमारा लैपटॉप है उसके अंदर जो स्क्रीन के ऊपर जो हमें डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए इसकी जरूरत रहती है सीआरटी कंट्रोलर की। Then printer controller, scanner controller, hard disk controller, all these are the different, nothing but the device drivers itself. But other than this, यहाँ पे दूसरे भी कुछ device controller हो सकते हैं, जैसे कि हमें स्पीकर के लिए चाहिए है, कैमरा के लिए चाहिए है। ये आपने नोटिस किया होगा कि अगर कैमरा यूज करना है कई बार आपके डेस्कटॉप के ऊपर तो वो आपको उसके ड्राइवर्स की जरूरत लगती है। समटाइम्स लैपटॉप में आपका कैमरा चल नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके ड्राइवर्स शायद से करप्ट हो गए हैं या ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ मैल फंक्शन हुआ है। दैट्स द रीजन दैट योर ड्राइवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो दैट्स द ओनली रीजन कि आपका यहाँ पे वो जो कैमरा है सिस्टम का वो भी वर्क नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या इंस्टॉल या फिर यहाँ पे री इंस्टॉल करने का जरूरत रहेगा? डिवाइस ड्राइवर्स या फिर डिवाइस कंट्रोलर्स। Are we comfortable with device controller? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Now, next is just a minute.
Okay. Next is about device controller itself, but with multiple devices of the same type. Okay. आपके लैपटॉप के अंदर डेस्कटॉप में शायद से नहीं आपने एक्सपीरियंस किया होगा, डेस्कटॉप में शायद आप 2 पेन ड्राइव तो लगा सकते हो, पर लैपटॉप के अंदर इवन देयर आर 3 पेन ड्राइव्स, आप 4 पेन ड्राइव्स भी लगा सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अपने लैपटॉप में नोटिस किया होगा कि क्या एक पेन ड्राइव लगाने के लिए जो ड्राइवर लगेगा, तो दूसरी पेन ड्राइव लगाओगे तो दूसरा ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तीसरी के लिए तीसरा अलग से ड्राइवर, चौथी के लिए चौथा अलग से ड्राइवर। नो, आपने एक बार ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है तो वो बार बार आप जब भी वो पर्टिकुलर टाइप का डिवाइस यूज करोगे या फिर एट द सेम टाइम आप एक से ज्यादा डिवाइसेस उसी टाइप के यूज कर रहे हो, तो वो सबके लिए वर्क होने वाला है, सबके लिए वर्क करने वाला है। यहाँ पे हम फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क के अंदर यहाँ पे देखिए 0, 1, 2 देयर आर बेसिकली 3 floppy disks are there within our system. Memory and CPU जो है उन दोनों को हमारा सिस्टम इंटरफेस है, उसकी मदद से ये फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को कनेक्ट किया हुआ है। एंड फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर जो है वो 3 हमारी फ्लॉपी को हैंडल कर रहा है। तो क्या उसके लिए हर एक फ्लॉपी के पर फ्लॉपी हमें यहाँ पे डिस्क कंट्रोलर का जरूरत होगा, पर फ्लॉपी हमें यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइवर का जरूरत होगा? नो, वी डोंट नीड दैट थिंग। हमें एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब कि एक ही, यहाँ पे देखिए आप एक ही कंट्रोलर है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर कितना है? एक है। उसके ऊपर ही आपके ये 3 फ्लॉपीज जो है वो वर्क कर रही है। सो इन अ वे द थिंग इज, द पॉइंट इज, डिवाइस कंट्रोलर कैन वर्क विथ मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम without installing it again and again. Is that clear with you? Yes, ma'am. श्योर हो ना, समझ आ रहा है ना? Simple Yes, and ma'am. very easy. Okay. Okay. Now the device controllers are classified in 2 parts. Major 2 parts में ये device controllers हमारे classified होते हैं, divide होते हैं। पहले हमने देख लिया यहाँ पे device controllers कहाँ गए? Okay. These are the device controllers we saw. यहाँ पे हमने कुछ 4, 5 जितने device controllers देखे हुए हैं। अब इसके ऊपर हम types देखेंगे कि कौन से अलग अलग types के device controllers हमारे पास में हैं, ठीक है? Okay. There are basically 2 types of device controllers we have. The very first one is on the base of capability और दूसरा है on the base of design implementation, ठीक है? 2 टाइप्स हो गए, एक हो गया capability, दूसरा है design implementation. We don't need to get into so much of detail of this device controller types. आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। As such, it's not there in very much in detail in our syllabus. syllabus के अंदर बस सिर्फ इतना अगर आप समझ गए हो तो हमारे लिए enough है, ठीक है? You don't need to get into too much detail. आप किसी ने बुक देखा कभी? Yes, you got your book. No, ma'am. No, ma'am. Okay, then try to get it. एक बारी देख लेना ताकि आप उसके साथ में कोरिलेट कर पाओ, ठीक है? ऑनलाइन भी होगी ना इसकी पीडीएफ? मैंने चेक नहीं किया हुआ है, ऑनेस्टली मैंने अभी नहीं देखा हुआ है। तो ऐसा है तो आप एक बार देख लेना, ठीक है? अगर ऑनलाइन होगी, किसी को मैम वो ऑनलाइन नहीं मिल रही है, पर फ्लिपकार्ट में बाय का ऑप्शन आ रहा है। ओके, नहीं मिल रही है। देन यू नीड टू गेट मैम इट। हमें एग्जाम में डायग्राम ही आएगा कि थियरी भी आएगी? इससे थियरी रहेंगे, हम ये डायग्राम का सिर्फ यूज कर रहे हैं इसे समझने के लिए, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। डायग्राम्स के ऊपर से हम समझ रहे हैं, बाकी डेफिनेटली यू नीड टू राइट योर थ्योरी। पहले डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, उसी तरीके से वहां पे भी एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है? और वो सारी जो थ्योरी है वो आपको बुक में से मिल जाएगा। सो गेट योर बुक, फाइन। इन फर्स्ट प्लेस यू नीड टू गेट योर बुक। वो बुक बहुत ही मतलब इजीली अवेलेबल है, ऐसा कुछ मेजर है नहीं, है बुक इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन भले ही नहीं अवेलेबल होगा, बट आप उसका फिजिकल कॉपी बाय करने जाओगे, पेपर वाला कॉपी, तो इजीली अवेलेबल है ये बुक, ठीक है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर्स, हमारे चारों के चारों यूनिट
एक ही इसी पर्टिकुलर बुक के अंदर से हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपको एक यूनिट के लिए एक बुक, दूसरे यूनिट के लिए दूसरा बुक, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एज इन लास्ट जो हमने पढ़ा था ना HTML DHTML which were majorly practical subjects, तो दैट्स व्हाई आई आस्क यू नॉट टू गो फॉर अ बुक। मैंने आपको बुक के लिए मना किया था, बट एज इन फॉर दिस सब्जेक्ट यू नीड टू गो विथ अ बुक, क्योंकि बुक का जरूरत रहेगा। इसमें थ्योरी काफी सारी है और बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको बुक का जरूरत तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ट्राई टू गेट इट, बुक लाइक मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है, ओके, नो वरी। सो बैक टू दिस आवर डिवाइस कंट्रोलर capability. So basically, capability does means what for you? What is capability? उसकी क्षमता। हाँ, उसकी क्षमता मतलब इन व्हाट टर्म्स, यहाँ पे हम कौन से टर्म में बोल सकते हैं कि डिवाइस कंट्रोलर का कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं है? सॉरी, कितना फास्ट वर्क करता है और कितना स्लोएस्ट वर्क करता है, वो सब। फास्ट एंड स्लो नॉट एग्जैक्टली। वो कितने कमांड एक्सेप्ट करता है, लाइक सिंगल कमांड, डबल कमांड। सॉरी क्या बोल रहे हो आप? लाइक कमांड्स कितने एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक सिंगल कमांड, डबल कमांड्स, इस तरह से। Okay, that is also there. At the same time, see, capability does means what किसी ने बोला अभी मेमोरी के रिगार्डिंग, तो हाँ वो चीज भी है यहाँ पे कि डिवाइस कंट्रोलर जो होते हैं वो स्मार्ट और मतलब डम डज मीन्स व्हाट यहाँ पे कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्मार्ट एंड बीइंग डम। डम मतलब कि हमारा जो कीबोर्ड है इट्स अ डम डिवाइस कंट्रोलर, जो कीबोर्ड के लिए चाहिए है, क्योंकि कीबोर्ड क्या करेगा, सिर्फ वन वे, हमें सिर्फ यहाँ पे इनपुट देते रहना है। क्या कीबोर्ड हमें कुछ दूसरा देता है सामने? कीबोर्ड से हमें कभी कुछ मिला, ऐसा कुछ हुआ है? कभी आपने सुना कभी कीबोर्ड ने आपको कोई आउटपुट दिया है, या कीबोर्ड ने कुछ बोला, कीबोर्ड ने कुछ किया? नहीं, कीबोर्ड विल नॉट रिएक्ट टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फाइन। तो ये कीबोर्ड हो गया, तो वो कौन सा हमारा डम है, ठीक है। पर अगर हम बात करें हमारे हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क कंट्रोलर के बारे में, तो हार्ड डिस्क कंट्रोलर है वो हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट कंट्रोलर है। क्यों स्मार्ट कंट्रोलर है? क्योंकि वहां पे हम डेटा को राइट करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, और विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर हम हार्ड डिस्क में पड़े हुए डेटा को रीड भी करते हैं। सो रीड राइट दोनों, मतलब दोनों डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, और वो दोनों चीजें हमारा डिवाइस कंट्रोलर है वो हैंडल भी कर रहा है। सेम वे अगर माउस देखे तो माउस के लिए जो हमें डिवाइस ड्राइवर का जरूरत होगा वो कौन सा होगा? डम होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिए जा रहा है, इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू अस, इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू यूजर। सेम वे अगर क्या है ये स्पीकर है, तो स्पीकर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देता है, इट्स ओनली, मतलब वो सिर्फ बजता है, दैट्स इट, इट्स नॉट टेकिंग एनी इनपुट फ्रॉम अस, फाइन। जबकि हार्ड डिस्क इज अ वेरी स्मार्ट डिवाइस कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप अगर कोई बुक अगर रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे बुक मार्क कर सकते हो। तो सेम वे हार्ड डिस्क में भी उसे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो डेटा हमारे लिए फैच करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि आपके पूरे हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा स्टोर है, उसमें से आप कोई पर्टिकुलर एक फाइल ओपन करना चाहते हो, तो उसमें उस पर्टिकुलर कंट्रोलर पे उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, उस एरो को, वहां से उस एड्रेस को फैच करेगा, वो हमें सारा कंटेंट दिखाएगा। तो इन अ वे उसके लिए उसे वो सारा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। एट द सेम टाइम व्हेन वी वांट टू राइट हार्ड डिस्क, हमें अगर कुछ राइट करना है हार्ड डिस्क, फिगर आउट करना पड़ेगा, एम्प्टी स्पेस निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा डेटा आ पाएगा, सेटल हो पाएगा, ठीक है। तो वो भी टास्क वो हमारे लिए करेगा। तो इन अ वे कैन वी से दैट दिस हार्ड डिस्क इज अ स्मार्ट डिवाइस कंट्रोलर एज इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो दैट्स डम एंड स्मार्ट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी कि वो वर्क कैसे करता है, हाउ द वे इट विल वर्क फॉर अस, बेस्ड ऑन दैट थिंग इट्स देयर। नाउ सेकेंडली इन डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, नाउ एज इन डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन दिए हुए हैं। 3 different types of design implementations are there. So design implementation does means what? Design implementation.
डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन है क्या बेसिकली? ये इसके हेल्प से वो वर्क करेगा, उसका मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम कोई फंक्शन में प्रॉब्लम हो रन करने में तो कैसे वो सॉल्यूशन देगा, ये डिजाइन से हम कर सकते हैं। ये इज देयर एनीवन रेजिंग देयर हैंड? एनी डाउट बॉयज? किसी को कोई डाउट है? हु वाज रेजिंग हैंड? कुछ डाउट है किसी को? ओके हाँ, कुछ बोल रहे थे आप रिगार्डिंग डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन? मैम किसकी मदद से वो वर्क करता है, लाइक मैन्युफैक्चर में क्या यूज होता है, कौन सा सर्किट यूज होता है, क्या सॉफ्टवेयर का यूज होता है, वो सब मैम। ओके यस, मतलब कि अभी हमने बात किया राइट डिजाइन सॉरी हमारे डिवाइस कंट्रोलर के बारे में, तो मतलब कि डिवाइस ड्राइवर के बारे में तो हमने बात किया। डिवाइस ड्राइवर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन, फाइन। तो अभी ये जो हमारा पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सपोज ये हमारी पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन है एयर कंडीशन, राइट। हम जब एसी आप ऑन ऑफ करते हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या हार्डवेयर ही होगा वहां पे? हाँ नो, तो वो किसकी मदद से वहां पे वो वर्क करता है? सॉफ्टवेयर। हाँ, वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी होगा, वो सर्किट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमें उसकी मदद से हमारा ये जो क्या है रिमोट, वो उसके साथ में लिंकअप हो पाता है, मतलब कि उसे ऑन ऑफ कर पाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाता है, ठीक है। तो इन अ वे यहाँ पे ये डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन जो बोल रहा है कि उसका डिजाइन कैसे किया गया है उसके बेसिस पे, जैसे अभी आपने बताया वैसे ही, ठीक है, कि हार्डवेयर सर्किट्स के फॉर्मेट में वो रहेगा यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन में के फॉर्मेट में रहेगा। ओके अभी अगर हम बात करें यहाँ पे एसी का या फिर टेलीविजन का, इवन हमारे माइक्रोवेव का, तो उन सब में हार्डवेयर सर्किट्स के फॉर्मेट में रहेंगे ये डिवाइस कंट्रोलर, राइट। कौन सा एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे हार्डवेयर सर्किट्स के फॉर्मेट में रहेंगे यहाँ पे हमारे डिवाइस कंट्रोलर्स? यस, रिमोट। हाँ रिमोट, हमारे टीवी का टीवी है, या फिर हमारा एयर कंडीशन है, या फिर हमारा माइक्रोवेव है, इन सब में रहेगा, ठीक है। अदर देन दिस एनीथिंग इफ यू हैव एनी आइडिया? केबल का अडेप्टर। नो नॉट एक्चुअली। अगर आपको आइडिया है ना, तो ये जो सेंसर्स होते हैं ना, उसके साथ में भी ये सर्किट में होते हैं। सेंसर्स की मदद से आपको भी एग्जांपल्स पता होंगे, कभी अगर किसी ने वो बीआरटीएस बस स्टॉप के ऊपर देखा हो कि उसका डोर ऑन ऑफ, मतलब ऑन ऑफ तो नहीं, ओपन क्लोज हो रहा है, या फिर ये शॉपिंग मॉल्स में जब भी आप एंटर होते हो तो ऑटोमेटिकली वो डोर ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो वो क्या करता है, सेंसर सेंस करता है हमें, राइट। या फिर आप अगर कुछ वहां से बाय करके लेकर जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल, और शायद से उसका वो अगर जो एक बैच रहता है वो अगर रह गया, टैग रह गया है, ठीक है, उसका जो बैच होता है उसे क्या बोलते हैं, वो ब्लैक कलर का मैग्नेटिक कुछ आता है ना, मैग्नेट होता है, क्या होता है, अगर वो रह गया है और आप उसे लेकर जा रहे हो ना बाहर, तो वो और मतलब इमीडिएटली वो स्टार्ट कर देता है बिप बिप करना, मतलब कि आप कुछ वहां से उठा के लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या उसने सेंसर ने सेंस किया। ये सारे सेंसर्स के ऊपर भी ये हार्डवेयर सर्किट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि उसे वो सेंस कर पाते हैं। हाँ, बारकोड रीडर के साथ में रहेगा, यस। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एयरपोर्ट्स में होता है, एयरपोर्ट्स में भी होता है मैम। बिल्कुल, एयरपोर्ट्स पे भी वेरी गुड, बोर्डिंग पास के लिए। हाँ, बोर्डिंग पास के लिए, करेक्ट। बोर्डिंग पास भी अभी ई बोर्डिंग पास हो गए, वी डोंट नीड टू मैन्युअली वो सारा लिखना करना, उसमें नहीं जाना है, हमारा वो ई बोर्डिंग पास आ गया है, तो यस दैट इज देयर, उसमें भी रहता है। तो वो सारे क्या हो गए, हमारे हार्डवेयर सर्किट्स हो गए। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़ती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे जरूरत होगी?
हाँ लैपटॉप में रहेगा, हाँ लैपटॉप में रहेगा, सेल फोन में, हमारे मोबाइल्स में रहेंगे। इन अ वे वी नो राइट, अभी आपको जानते हो आप कि व्हाट्स दैट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, उसमें जरूरत रहेगा। देन सिर्फ सॉफ्टवेयर, ओनली सॉफ्टवेयर फर्मवेयर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर में सिर्फ कहाँ पे जरूरत रहेगा? व्हाई डू वी नीड जस्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर? सिक्योरिटी पर्पस, वेयर? डेटा सिक्योरिटी। हाँ डेफिनेटली वही डेटा सिक्योरिटी, पर व्हेन मतलब वेयर, कैसे सर्कमस्टेंसेस में कहाँ पे जरूरत हो सकती है सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर का, डिवाइस कंट्रोलर का? इंटरनेट ब्राउजर। ओके सी बेसिकली हमारा अगर ये कीबोर्ड है, ठीक है, या फिर माउस है, ठीक है, माउस पैड है, कीबोर्ड है, तो उन सब में क्या हार्डवेयर के अंदर कुछ हमारा सर्किट वर्किट होगा हमारे हार्डवेयर के अंदर, या फिर वो सीधा हमारा जो केबल है यूएसबी केबल उसकी मदद से जाएगा? ओके अभी जो हमारा ओएस है, ठीक है, ओएस जो है वो बेसिकली है क्या, क्या हम उसे भी ऐसे सॉफ्ट डिवाइस कंट्रोलर बोल सकते हैं? कैन वी कॉल इट एज अ डिवाइस कंट्रोलर? यस यस। ओके, तो क्या वो ओएस है, ओएस किसके मतलब ओएस के लिए क्या आपको हार्डवेयर का जरूरत है? नो मैन, ओएस क्या है? बेसिकली प्योरली अ सॉफ्टवेयर बेस्ड थिंग है, राइट? तो ऐसी चीजों को मतलब ओएस है तो उसको हम डाल सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है? तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आवर डिवाइस कंट्रोलर। आर वी कंफर्टेबल विद दिस थिंग? सी इसमें बस इतना ही है, ये डिवाइस कंट्रोलर के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, हमने एक्चुअल में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इतना भी आपको नहीं है एक्चुअली, बुक में सिर्फ इतना डायग्राम है और इतना बोला गया है कि दीज आर द डिवाइस कंट्रोलर्स एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिवाइस कंट्रोलर, दैट्स इट, ठीक है? तो हमने और ज्यादा डिटेल में इसे डिस्कस कर लिया है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। दूसरा कि जब भी हम यहाँ पे लाइक बात करते हैं कि कंट्रोलर जो है वो कैसे अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि सपोज इंडिविजुअली सिर्फ एक हमारा डिवाइस कंट्रोलर है एज अ सेपरेट यूनिट हो सकता है, या फिर इट मे इंटीग्रेटेड विद अ डिवाइस विद द अदर डिवाइस, फाइन, और एन इंटीग्रेटेड डिवाइस विद सीपीयू। अगर हम बात करें कि सेपरेट यूनिट मतलब कि सेपरेटली पूरा डिवाइस कंट्रोलर है ना, वही सेपरेटली एक मशीन है, ठीक है, दैट्स कंसीडर्ड एज अ सेपरेट यूनिट, पूरा का पूरा डिवाइस कंट्रोलर ही सेपरेट है, तो वो यहाँ पे किस में आएगा? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी हमें उसके लिए, क्योंकि वो सेपरेट यूनिट है, उसको हैंडल होने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो खुद को चाहिए होगा और रहने के लिए उसे हार्डवेयर की भी जरूरत रहेगी, तो दैट विल बी कंप्लीटली ऑल टुगेदर अ सेपरेट यूनिट, फाइन। दूसरा है इंटीग्रेटेड डिवाइस विद द डिवाइस। इंटीग्रेटेड डिवाइस विद द डिवाइस का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? हमारे बारकोड रीडर्स, बारकोड रीडर क्या है? इंडिपेंडेंटली एक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर अगेन कंट्रोलर होगा, दूसरा वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? हमारे कंप्यूटर के साथ में, तो कंप्यूटर के अंदर वो बारकोड रीडर को चलाने के लिए कंट्रोलर होगा, तो डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस, फाइन, तो वो हो गया। तीसरा है हमारे पास एन इंटीग्रेटेड डिवाइस विद द सीपीयू। एन इंटीग्रेटेड डिवाइस विद द सीपीयू मतलब कि सीपीयू इटसेल्फ इज हैविंग दिस डिवाइस कंट्रोलर। तो ऐसे कौन से डिवाइस कंट्रोलर्स होंगे जो सीपीयू के अंदर होंगे? हमारे कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, स्पीकर के लिए, यूएसबी ड्राइवर के लिए, तो ये सारे जो हमारे डिवाइस कंट्रोलर्स हैं जो कि सीपीयू में रहेंगे। तो बेसिकली कितने टाइप्स के हुए यहाँ पे? 3 तरीके से फिजिकली हमारे डिवाइस कंट्रोलर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट 3 फॉर्म्स। वेरी फर्स्ट फॉर्म इज इट्स कंप्लीटली अ सेपरेट यूनिट, a separate component, fine. Secondly, an integrated device with the another device, that's we just discussed कि जहाँ पे हमारा बारकोड रीडर है और हमारा कंप्यूटर है उसके साथ में अटैच होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड है हमारा an integrated device with CPU, मतलब कि CPU के अंदर ही वो डिवाइस जो है उसके बारे में सारा कुछ हमारे ये डिवाइस कंट्रोलर्स हैं वो सारे होंगे, मतलब कि हमारे कीबोर्ड के लिए ले लें, माउस के लिए ले लें, हमारे वेबकैम के लिए ले लें, ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर।
आर वी क्लियर विद दिस? 3 टाइप्स समझ में आ गए हैं हमें? ओके ओके। अभी यहाँ पे है हमारा बेसिक, बहुत ही बेसिक डिवाइस कंट्रोलर है, उसके यहाँ पे 5 पार्टीशंस किए हुए हैं। सो बेसिकली डिवाइस कंट्रोलर कौन है? ये है हमारा, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना पूरा, दिस इज द डिवाइस कंट्रोलर। सीपीयू एंड मेमोरी, ये सीपीयू एंड मेमोरी हो गया, ये पूरा डिवाइस कंट्रोलर हो गया, ये पूरा आईओ डिवाइस हो गया। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट इसकी ओर से हमारा जाएगा, किसके थ्रू होते हुए वो जाएगा? डिवाइस कंट्रोलर से। किसके पास जाएगा? सीपीयू या मेमोरी के पास जाएगा। उसे डायरेक्टली कंप्यूटर सीपीयू नहीं समझेगा, इसलिए ये बीच में हमने रखा है। समझ आया है? ये जो आईओ डिवाइस है मतलब कि इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या डायरेक्टली हमारे सीपीयू के साथ में, सीपीयू समझ पाएगा हमारे कीबोर्ड ने जो डाला है कंटेंट उसको? तो उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा हमें? कीबोर्ड के ड्राइवर का, कीबोर्ड के कंट्रोलर का, इंटरफेस का, ठीक है। तो इसलिए वो डिवाइस इंटरफेस हमने यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर यहाँ पे लगाया हुआ है। डिवाइस कंट्रोलर है, ये सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन। उसकी मदद से डेटा कहाँ जाएगा? हमारा मेमोरी में स्टोर होगा और उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करना है, या हमने कुछ अगर उसे कमांड दिया है परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपका परफॉर्म हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइस इंटरफेस है। क्यों डिवाइस इंटरफेस है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस हम हमारे डिवाइस कंट्रोलर को कुछ डेटा सिग्नल दे रहे हैं, तो किसका जरूरत पड़ेगा? डिवाइस इंटरफेस का। इन दोनों के बीच में कुछ इंटरफेस का जरूरत रहेगा, क्योंकि कंट्रोलर है वो भी इनपुट आउटपुट को डायरेक्टली नहीं समझने वाला है, इनपुट आउटपुट भी डायरेक्टली इसको नहीं समझेगा, किसी की मदद से तो डेटा को ट्रैवल करवाना पड़ेगा। तो बॉम्बे में कोई बैठा है, दोनों को एक पार्सल शेयर करना है, दोनों अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, पार्सल अपने आप जाएगा? नहीं, वी नीड टू टेक सम एफर्ट्स। तो यहाँ पे डिवाइस इंटरफेस की मदद से ये दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। डिवाइस, दैट्स व्हाई ये डिवाइस इंटरफेस का जरूरत है। यहाँ पे सीपीयू एंड मेमोरी क्या है? हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो नाउ व्हाट वी वांट टू डील विद द सीपीयू एंड मेमोरी, वी नीड अ सिस्टम इंटरफेस। तो यहाँ पे with the help of the system interface, this particular device controller is going to share data with our CPU system and memory. This thing, system interface and device interface, input output device and CPU and system memory, that much we are clear with. अब आती है बारी हमारे ये जो एक्चुअल हमारा जो डिवाइस ड्राइवर है उसकी, वो बेसिकली यहाँ पे हमारे 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। सिस्टम इंटरफेस लॉजिक, रजिस्टर, डेटा बफर, स्टेटस रजिस्टर, डिवाइस इंटरफेस लॉजिक, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें ये डिवाइडेड हैं। ये ऑल दिस 5 पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर स्टेज, बाद में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, नॉट नाउ, ठीक है। बाद में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी ये पर्टिकुलर डायग्राम में समझ में आया है आपको? इसे अभी के लिए आप पार्टीशन में डिवाइड मत करना, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि ये हमारा क्या है? डिवाइस कंट्रोलर है, दैट्स इट। आप इसे पार्टीशन मत करना कि कमांड रजिस्टर, डेटा बफर, सिस्टम इंटरफेस लॉजिक, डिवाइस इंटरफेस लॉजिक, स्टेटस रजिस्टर, नो, डोंट डिवाइड इट। जब डिवाइड करने की बारी आएगी आई विल लेट यू नो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट कॉमन सिस्टम इंटरफेस। यहाँ पे आप देखो कि ये सारे के सारे जो है ना वो कॉमन सिस्टम इंटरफेस है। कॉमन सिस्टम इंटरफेस डज मींस व्हाट ओवर हियर? कैन यू एक्सप्लेन इट? ओके, बेसिकली यहाँ पे ये सिस्टम इंटरफेस जो है वो क्या रहेगा? इज द सेम टू ऑल डिवाइस कंट्रोलर्स, ऑल्दो देयर आर सेवरल डिवाइस कंट्रोलर्स आर कनेक्टेड टू द सिस्टम इंटरफेस, बट एट अ टाइम ओनली वन of them is going to logically connected to our system. So basically the point is कि यहाँ पे 3 है हमारे। अब देखो फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, अगेन दूसरा हार्ड डिस्क कंट्रोलर, तीसरा CRT कंट्रोलर। तीनों के लिए
तीनों के तीनों जो हैं वो कनेक्ट करेंगे हमारे मेमोरी को या सीपीयू को, मतलब कि हमारे सिस्टम को। तो उसके लिए आप देखो तीनों के लिए एक ही सिस्टम इंटरफेस है, मतलब कि आप देखो ये एक एरो ही जा रहा है, एक एरो ही है, यहाँ पे तीन अलग अलग है, 1 2 3 भले ही सेपरेट है पर यहाँ पे एक ही के साथ कनेक्ट करता है। मतलब पहली बात कि तीनों के लिए एक ही इंटरफेस काफी है, ठीक है, एक ही इंटरफेस, एक ही कंट्रोलर की मदद से, सॉरी एक ही सिस्टम इंटरफेस की मदद से ये तीनों के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन इंटरनली जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा लॉजिकली, तब तीनों में से कोई एक के साथ ही हमारा जो सिस्टम है उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, नॉट विद ऑल थ्री ऑफ दिस। आपको ऐसा फिजिकली दिखने में ऐसा लगेगा, हमें भी ऐसा लगता है दिखने में कि हम एट द सेम टाइम मैं टाइप भी कर रही हूँ, मेरा डेटा सेव भी हो रहा है, मेरा डेटा कुछ प्रिंटिंग भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें इन हो रही है, ठीक है। पर एट ए टाइम हमारा जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंट्रोलर के साथ विद द हेल्प ऑफ सिस्टम इंटरफेस डील कर रहा होता है। सो भले ही तीन एक साथ में कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ में, पर तीनों में से किसी एक के साथ ही ये कंप्यूटर है ना हमारा, सीपीयू है, मेमोरी है, वो डील कर रहा है, नॉट विद ऑल थ्री ऑफ दिस। आर वी गेटिंग दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। सो वी आर कीपिंग टिल दिस, यहाँ तक हम आज की क्लास में रख रहे हैं। सबको हमने आज जो भी डिस्कस किया है सारा कुछ समझ आया है? यस मैम। ओके, श्योर हो ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एंड ट्राई करना वो बुक, आप ट्राई टू गेट द बुक, फाइन, सो दैट आपके पास बुक रहेगा, आपके थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि आप मतलब